Next function of operating system is job priority. The work of job priority is creation and promotion. It determines what action should be done first in a computer system. मतलब क्या अगर बहुत सारी जॉब्स एग्जीक्यूट हो रही हैं तो किस जॉब को पहले एग्जीक्यूट करना है ये डिसाइड करना. Special control program, the operating system like automatic changes. The operating systems make automatic changes to the task through specific control programs. These programs are called special control program. Scheduling of resources and jobs. The operating system prepares the list of tasks to be performed for the device of the computer system. क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? जितनी भी टास्क एग्जीक्यूट हो रही है उनकी लिस्ट प्रिपेयर करेगा. ठीक है. The operating system decides which device to use for which task. ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि कौन सी डिवाइस यूज करेगी किस टास्क को. This action becomes complicated when multiple tasks are to be performed simultaneously in a computer system. The scheduling programs of the operating system determine the order in which tasks are completed. It performs these tasks based on the priority of performing the task given by the user. It makes the task available based on the priority of the device. कि किस क्या करेगा सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी टास्क एग्जीक्यूट होती है उनकी लिस्ट प्रिपेयर करेगा और फिर उनको प्रायोरिटी असाइन करेगा कि किस टास्क को पहले एग्जीक्यूट करना है. ओके. नेक्स्ट ईयर सिक्योरिटी. Computer security is a very important aspect of any operating system. The reliability of an operating system is determined by how much better security it provides us. ठीक है. कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एक एस्पेक्ट है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का. रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? द रिलायबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कितना बेटर सिक्योरिटी जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करेगा वो उतना अच्छा होगा. ठीक है. मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज अ फायरवॉल फॉर सिक्योरिटी. फायरवॉल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्या होता है फायरवॉल? फायरवॉल ये चेक करता है कि हमारे सिस्टम से जो रूल्स हमने फायरवॉल के लिए सेट कर रखे हैं कि ना तो नेटवर्क्स में कोई ऐसा डेटा आए जो कि प्रोहिबिटेड है और ना ही नेटवर्क से कोई डेटा ऐसा बाहर जाए जो प्रोहिबिटेड है. ओके. सो अ फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एवरी एक्टिविटी हैपनिंग इन द कंप्यूटर एंड ब्लॉक्स दैट एक्टिविटी इन केस ऑफ एनी थ्रेट. Monitoring activities. The operating system takes care of the activities of the computer system during various processes. Monitor करता रहता है operating system. This aborts the program if there are error. वो क्या करेगा? रोक देगा प्रोग्राम को अगर कोई एरर उसे मिलती है. The operating system sends instant messages to the user for any unexpected error in the input-output device. It also provides security to the system when the operating system is used in system operated by multiple users so that illegal users cannot get data from the system. ठीक है. क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? आपके सिस्टम को मॉनिटर करता रहेगा और जैसे ही कोई एरर आएगी तो वो क्या करेगा? आपको मॉनिटर के ऊपर मैसेज पॉपअप कर देगा कि देयर आर सम एरर्स और दिस फाइल इज नॉट रिलायबल इफ यू आर डाउनलोडिंग सम फाइल्स इन दिस केस. सो ये सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता रहता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज जॉब अकाउंटिंग. इट कीप्स ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज बाय वेरियस जॉब्स एंड यूजर की किसको कितना टाइम मिल रहा है ये भी देख के रखता है, काउंट करता रहता है. नेक्स्ट योर ट्रांसलेट मैनेजमेंट. इट वर्क्स एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन यूजर्स कमांड एंड हार्डवेयर. नेक्स्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट. इट क्रिएट्स ट्रैक्स, सेक्टर्स, facts and other debugging messages as well as it destroys the old floppy format track and sector and data. Next, your integrity management. It maintains the data and programs as an integrated form. And communication management. In the communication management, operating system provides the communication facility between the computer and user. Okay. Or between computer to computer. So these were some functions of your operating system. Now language processor. क्या होता है language processor? एक language processor को समझने के लिए पहले अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपको जाना है some foreign country if you want to go, then आपको क्या आना चाहिए? आपको वहाँ की लैंग्वेज आना चाहिए. ठीक है. और अगर इन केस आप वहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो आपको क्या नीडेड रहेगा? एक ट्रांसलेटर नीडेड रहेगा. तो वो क्या करेगा? आपकी लैंग्वेज को अदर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा
और अदर्स की लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, सो दैट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, आप समझ सकें कि सामने वाला क्या बोल रहा है और सामने वाला समझ सके कि आप क्या बात कर रहे हैं। फाइन। सो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। ओके, हम क्या समझते हैं? हम समझेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज हम समझते हैं, ठीक है। बट कंप्यूटर में जब हम कोडिंग करते हैं, तो अभी जैसे आप क्या करेंगे, जावा में कोडिंग करेंगे, इसी तरह से सी में कोडिंग होती है, पास्कल में कोडिंग होती है, पाइथन में कोडिंग होती है, पीएचपी में कोडिंग होती है, देयर आर डिफरेंट, सी के अंदर कोडिंग होती है, C++ में कोडिंग होती है। सो दीज आर सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, सो दीज आर सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो लैंग्वेज एक यूज़र समझता है। हम जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, ये क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। समझ में आया आपको? अभी ये ज़्यादा समझ में आएगा जब हम जावा लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको मैं बता दूंगी, अब जो अपना अगला लेक्चर होगा, वो लेक्चर अब से हम जावा को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो, वो प्रॉब्लम आप उससे पूछ लीजिए। तो अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस इन मशीन कोड, that is in the form of zeros and ones. It is a tedious task to write a computer program directly in machine code. क्या आपको 0 and 1 के फॉर्म में बोल दें तो आप पूरा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? इट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क। हमको हर चीज़ का इंस्ट्रक्शन याद करना पड़ेगा कि किसको क्या बोला जाता है 0 and 1 की फॉर्म में, वो हमको कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इट विल बी अ टीडियस टास्क। The programs are written mostly in high-level languages like Java, C++, Python, etc. and are called source code. कोड जो कि लिखा होता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज लाइक जावा, तो वो क्या कहलाता है? आपका सोर्स कोड कहलाता है। These source code cannot be executed directly by the computer and must be converted into machine language to be executed. Okay? ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ सोर्स कोड है, ये कंप्यूटर डायरेक्टली रन नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है? पहले कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि मशीन या आपका कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। Hence, a special translator system software is used to translate the program written in high-level language into machine code is called language processor. Fine. And the program after translated into machine code, जो कोड बनता है मशीन कोड कहलाता है, या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड हम उसको कहते हैं, जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम रहता है बाइनरी लैंग्वेज में। द लैंग्वेज प्रोसेसर्स कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। एक हो सकता है आपका कंपाइलर, सेकंड आपका हो सकता है असेंबलर, और थर्ड होता है आपका इंटरप्रेटर। ओके, तो फर्स्ट वी विल सी कंपाइलर। द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट रीड्स द कंप्लीट source program written in high level language as a whole in one go and translate it into an equivalent program in machine language is called as compiler. Okay, तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो होता है वो पूरे ही सोर्स कोड को एक साथ रीड करके ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, वो क्या कहलाता है? आपका कंपाइलर कहलाता है। ये देखो, जैसे कि सोर्स कोड है, कंपाइलर ने उसको लिया और पूरा उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज कर दिया। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका कंपाइलर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट योर असेंबलर। असेंबलर क्या करेगा? असेंबलर आपके असेंबलर भी यही काम करेगा, लेकिन वो क्या करेगा? असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को लेकर मशीन लैंग्वेज के अंदर चेंज कर देगा। दिस इज द वर्क ऑफ असेंबलर। Okay, the assembler is used to translate the program written in assembly language into machine code. The source program is the input of assembler that contains assembly language instruction. जो source code होगा assembler के लिए वो क्या होगा? assembly language का होगा, instruction होंगे। जो output generate होगा वो assembler के लिए वो object code होगा या machine code होगा, जो कि understanded होगा किसके लिए? computer उसको understand करेगा। machine code understandable by the computer. नेक्स्ट योर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करेगा? द ट्रांसलेशन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इज डन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर एंड एग्जीक्यूट्स इट इमीडिएटली बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट लाइन इज कॉल्ड एन इंटरप्रेटर, ठीक है।
If there is an error in the statement, the interpreter terminates its translating process at that statement and displays an error message. The interpreter moves on the next line for